السلام علیکم، میں ہوں اختر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پختون تحفظ موومنٹ کے رہنما اور ایم این اے علی کی جو ہے وہ درخواست ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی ہے، اور اس حوالے سے عدالت نے جو ہے وہ کہا ہے کہ 4 لاکھ روپے کے جو مچلکے ہیں وہ عدالت میں جمع کرائے جائیں، اور علی وزیر کو جو ہے وہ اگر کسی اور مقدمے میں وہ مبینہ طور پر ملوث نہیں ہیں تو ان کو رہا کر دیا جائے۔ آج بڑی زبردست سماعت ہوئی ہے، اور جسٹس طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے بڑے اہم سوالات اٹھائے ہیں، اور ان سوالات کا تذکرہ بھی کروں گا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ علی وزیر کی ضمانت میں رہائی کی وجوہات کیا تھیں، اور پراسیکیوشن میں ایسے کیا جو ہے غلطیاں کی ہیں، اور استغاثہ کا کیس کیا تھا، اور سپریم کورٹ نے جو ٹی ٹی پی کے ساتھ جو حکومت کے معاہدے ہو رہے ہیں اس پہ کیا بات کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے جو ہے وہ دیگر حوالوں سے جو ایک سخت ترین ریمارکس بھی دیے ہیں، تو ان سب کی ڈیٹیل جو ہے وہ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو علی وزیر کا مقدمہ ہے یہ شروع ہوا تھا ان کی نفرت انگیز تقریر کے حوالے سے، اور اس کے بعد پھر یہ کیس سندھ ہائی کورٹ میں گیا، انہوں نے بھی ان کی ضمانت کی درخواست منظور نہیں کی۔ اس کے بعد پھر یہ سپریم کورٹ آیا، اور سپریم کورٹ نے آج جو ہے ان کی ضمانت کی درخواست جو ہے وہ نہ صرف منظور کی ہے بلکہ کئی اہم ترین سوالات بھی اٹھائے ہیں۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے جو حکومت سے سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ معاہدے کریں اور ہم خالی یہاں پہ لوگوں کی ضمانتیں خارج کرتے رہیں تو یہ کیسا حساب ہوگا؟ ایک طرف آپ معاہدے کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ضمانتیں مسترد کریں۔ اور آج کی جو سماعت ہے اس میں لطیف افریدی جو ہیں وہ پیش ہوئے ہیں علی وزیر کی جانب سے، اور اس دوران محسن داوڑ اور منظور پشین بھی جو ہے وہ آئے ہوئے تھے، اور دیگر کافی سارے ساتھی کورٹ کے باہر بھی موجود تھے، اور یہ سماعت انتہائی اہمیت کی حامل تھی، جس میں پراسیکیوشن ایک بات ثابت کرنے میں بری طرح ناکام رہی ہے کہ جن ساتھی ملزمان کو ضمانت پر رہا کیا گیا اور جن کا مقدمہ جن کے خلاف دی گئی ایف آئی آر تک جو ہے وہ علی وزیر کے ساتھ تھی، اگر ان کو رہائی دے دی گئی ہے تو پھر ایسی کیا خصوصیت تھی، ایسا جو ہے یہ علی وزیر کا کیس ڈیفرنٹ کیسے تھا کہ جس کی وجہ سے آپ نے اس کی ضمانت منظور نہیں کی؟ اور آیا یہ جو علی وزیر ہے اس نے ایسا کیا جرم کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے باقی ساتھیوں نے نہیں کیا، اس لیے ان کی ضمانت تو نہیں بنتی اور باقیوں کی بنتی ہے، اور باقی لوگوں کو رہا بھی ضمانت پر کیا جا چکا ہے۔ اور لطیف افریدی نے اہم ترین جو دلائل میں نکات اٹھائے ہیں، اس نے کہا ایک تو تقریر پشتوں میں تھی، اور اس کا مقدمہ دائر کرانے والا اور درخواست دینے والا وہ سندھی تھا خیر سے، اور سندھی نے کیسے اس کا سارا کچھ کیا، یہ سارے معاملات کیے۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نفرت انگیز تقریر نہیں تھی، دراصل یہ ایک لحاظ سے علی وزیر کی شکایت تھی کہ آپ نے جو ہے یہ سارا کچھ جو ہے میرے 17 لوگ مارے گئے میرے گھر کے، جس میں والد بھی تھا، بچے بھی تھے، ان لوگوں کو مارنے کے بعد کیا میں اب شکایت بھی نہیں کر سکتا؟ انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ یہ جو اس طرح کی جو بغاوت کا مقدمہ یا آرٹیکل 6 کے تحت جو مقدمہ یا انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت جو بھی کارروائی آپ کرتے ہیں، اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ یا تو وفاقی حکومت اس کی کمپلینٹ کرتی ہے یا پھر صوبائی حکومت کمپلینٹ کرتی ہے، اور اس پہ پھر جو ہے کنسرن جو آفیسرز ہوتے ہیں
कंसर्न जो लोग होते हैं वो शिकायत दर्ज कराते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। ना तो वफाक ने कोई शिकायत की थी, ना ही सूबाई हुकूमत की तरफ से कोई शिकायत थी। तो ये ऐसा क्यों, ये सारी ये सिलसिला कैसे हो गया और ये मामलात हो गए। और जस्टिस तारिक मसूद ने बड़े सख्त आज सवालात भी किए। लतीफ़ अफरीदी से भी उन्होंने सवाल किया कि आपका केस कैसे बनता है और क्यों नहीं ये उनके खिलाफ, वो क्यों इस तरह की नफरत अंगेज़ तकरीरें कर रहे हैं। और मंदू खैल जस्टिस ने तो बड़े सख्त बात की। उन्होंने कहा कि अगर हम इस तरह की कार्रवाई करेंगे, अगर कोई नाराज़ है, कोई मुल्क से किसी को शिकवा शिकायत है, तो उनकी शिकायतें सुनकर उस पर गौर क्यों नहीं किया जाता। ये अपनों को पराया बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है, और ये ऐसा क्यों जो है पस मंज़र हो रहा है। उसके साथ फिर जो प्रोसिक्यूशन की टीम पेश हुई, यकीन करें मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें शायद एबीसी भी नहीं आती। और ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ कि उनको प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध जो आए हुए थे, और नाम तो अपने के साथ वो डॉक्टर लगाते हैं, लेकिन यकीन करें मुझे वो ज़रा भी पढ़े लिखे नज़र नहीं आए। ना तो उनके पास एफआईआर की कापी थी, ना उनके पास जो मुख्तलिफ अदालतों के फैसले, मातहत अदालतों के फैसले आए या हाई कोर्ट ने फैसला दिया, उसकी कापी भी नहीं थी। उसको ये तक नहीं पता था कि अभी केस किस प्रोसेस में है, जो फर्द जुर्म आयद हुई है वो कब हुई, कैसे हुई। और आ जाए अली साहब, तो ये फर्द जुर्म कैसे हुई और ये सारा मामला जो है ये कैसे हुआ। मगर वो किसी भी हवाले से जवाब नहीं दे सके। उनसे ये पूछा गया, चलो आप ये बताएं कि जो आपने दफात लगाई हैं और जिन दफात पे आप बात कर रहे हैं और जिसकी वजह से आपने अली वजीर को जेल में रखा हुआ है, तो क्या वो दफात जो हैं उनकी ज़रा तारीफ़ तो करें। वो अंग्रेज़ी में तारीफ़ भी नहीं पढ़ सके, ना उसकी वजाहत कर सके हैं। और बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी। मैं तो बहुत हैरान हो रहा था और अफसोस भी हो रहा था कि मेरे मुल्क के जो अवाम हैं, उनके पब्लिक का, जो हमारी अवाम का जो टैक्स पेयर्स का पैसा लगता है, और इनको हम लाखों रुपए तनख्वाहें देते हैं। और ये पोजीशन ये है कि उनको ये नहीं पता कि ये जो दफात आप लगा के खड़े हैं, या 780 आपने कैसे लगा दी, कौन सी दफ़ा आपने क्यों लगाई, तो वो किसी का भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। और फिर अदालत ने कहा कि क्या हम ये लिख दें कि 780 तो लगता नहीं था और उसकी वजूहात की थी, आपने क्यों लगाया। तो बाकियों को अगर आप जमानत पे रिहा कर चुके हैं, उसी केस में एक छठे सातवें बंदे को सिर्फ आप क्यों जेल में रखे हुए, और 1 साल गुजरने को है, तो उसका प्रोसिक्यूशन टीम कोई जवाब नहीं दे सकी। मुझे एक और भी शुबा सा होता है। मैं इस हवाले से कोई लंबी वो मैं उस पे बात नहीं करना चाह रहा, मगर ये मैं ज़रूर सोच रहा हूँ कि इस जो पीटीएम है, इनकी तारीफ़ जो है वो बिलावल भुट्टो भी कर चुके हैं। और सिंध की हुकूमत भी कहती थी कि ये इन पे बगावत के मुकदमे नहीं होने चाहिए, मगर बगावत का मुकदमा दर्ज भी हुआ तो वो भी उधर सुराब गोट में। और फिर मुझे लग यही रहा था कि जैसे सिंध हुकूमत की तरफ से हल्का सा पुश किया गया हो प्रोसिक्यूशन टीम को कि जायल बने रहना, कोई बात सीधी ना बताना, और कोई ऐसी बात ना कर देना कि जैसे अली वजीर को कोई सज़ा मिल जाए। बहरहाल अलमिया यही है, और अदालतों की पहले भी शिकायत यही होती है कि प्रोसिक्यूशन अपना केस सही तौर पे डील नहीं करती, और तफ्तीशी अपनी तफ्तीश करता नहीं। आज भी वो तफ्तीशी नहीं आया, पता नहीं वो कहाँ गायब था, किसके साथ बैठा हुआ था, वो क्यों नहीं आया। और हैरत की बात है कि अदालत के अहकामात के बावजूद वो नहीं आया। बहरहाल अदालत ने भी उस पर रिमार्क्स तो दिए, मगर उसके खिलाफ कार्रवाई अदालत ने भी नहीं की। तो ये जो प्रोसिक्यूशन का जो मामला है, ये जब तक प्रोसिक्यूशन अपना केस सही तैयार नहीं करेगी, और आप देख रहे हैं फिर अदालतों पे इल्ज़ाम आते हैं कि अदालतें जो है ना लोगों को रिहा कर रही हैं और उनको सज़ाएं नहीं दे रही हैं, ये नहीं कर रही हैं। अदालतें क्या करें, अदालतें उन्हें काम करना होता है प्रूफ पे। जो आप उनके सामने रखते हैं, जो बात आप सामने बिठाते हैं, जो शवाहिद पेश करते हैं, उसकी बेस पे उन्होंने कार्रवाई करनी होती है। अब किसी ने अगर हेटेड जो है स्पीच कर भी दी है और उसकी डीवीडीज भी गई हैं, मगर उसका जायज़ा तक सही तौर पे नहीं लिया गया। उन्होंने कहा जी ऑडियो की समझ नहीं आ रही, तस्वीर वही है जी, उन्होंने जो है ना
पंजाब की जो फॉरेंसिक लैब थी उसने कहा जी ये जो तस्वीरें और वगैरह वीडियो वगैरह जो है इन्हीं लोगों की है, मगर जो ऑडियो है वो नामुकम्मल है। और पेशावर वाली लैब ने भी यही बात कर दी। और अगर ये प्रोसिक्यूशन की नाकामी हम करार दे दें, उसके साथ साथ ये भी मैं कह रहा हूँ कि ये जो बड़े बड़े मुकदमात में मुलजमान बरी हो जाते हैं ना, उसमें पहले नंबर पे जो है जो एफआईआर दर्ज होती है वो बेहतर नहीं होती, दूसरे नंबर पे फिर उस पे जो तफ्तीश होती है वो बेहतर नहीं होती, और सोने पे सुहागा फिर इस जैसे जो प्रोसिक्यूशन के अफसरान खैर से अदालतों में पेश होते हैं, यकीन करें अजीब सा लगता है। ये प्रोसिक्यूटर जनरल जो सिंध के तशरीफ़ लाए, ये उनका मैं मेरी नज़रों में ये दूसरा तीसरा केस है जो उनको कुछ पता ही नहीं होता। जब भी पूछते हैं एफआईआर का है, वो कहते हैं मेरे पास नहीं है। जब उनके पास कोई रिकॉर्ड भी पूछा जाता है वो फरमाते हैं मेरे पास नहीं है। पता नहीं वो शायद हाज़िरी लगाने आते हैं, जहाज़ की सैर करने आते हैं और आए इस्लामाबाद जहाज़ पे और फिर जहाज़ पे गए, टीएडी अपना वसूल किया और घर को चल दिए। और अगर यही हाल रहा, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, दहशतगर्द जो हम रिहा कर देते हैं ना, उसकी बुनियादी वजूहात भी यही प्रोसिक्यूशन होती है। और आज के केस में तो बिल्कुल वाज़ेह हुआ है कि प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में नाकाम रही है और अली वज़ीर की ज़मानत हो गई। मंजूर पशीन ने बड़े सख्त जुमले भी कहे, मगर उन्होंने एक बात बड़ी ज़बरदस्त की कि आप अगर 17 बंदे मार दें घर के, और क्या उस पे वो शिकायत भी ना करे अगला? शिकायत तो करेगा, फिर इदारों पे ब्लेम तो होंगे। अब ज़रूरत इस अमर की है, मंदू खैल ने भी जस्टिस ने भी बड़ी दबंग बातें की हैं। उसने कहा है कि इस तरह के मामलात को जो है ना पार्लियामेंट में हल होना चाहिए और लोगों के एतमाद को बहाल होना चाहिए। उसके साथ साथ मंजूर पशीन ने भी कहा कि आज अदालत ने जो फैसला किया है, हमारी आखिरी उम्मीद भी यही है और पहली भी उम्मीद यही थी, और हमें इससे इंतहाई खुशी हुई है। और इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो के साथ आप देखते रहिए अख्तर सिद्दीकी न्यूज़। बहुत शुक्रिया।